बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we have very important lecture and the topic is chapter number 7, disputes as to immovable property. First of all, I would like to start my lecture from the definition of immovable property. So far as the definition of immovable property is concerned, any property which cannot be separated from the earth or a property which is permanently fastened with the earth is called immovable property. The parallel term as compared to immovable property is a movable property, and the definition of movable property is that a property that can be separated from the earth or a property which can be replaced from one place to another place is called movable property. In recent times, the law has developed, and the contention of the legislature is to enable the people to get maximum remedy in minimum time. For this purpose, the legislature has developed certain laws, and Section 145 CRPC is one of the important provision of law which has been enunciated in CRPC regarding the possession of immovable property. If a dispute arises between the parties regarding the possession of immovable property, then immediate remedy available to a person is the provision under Section 145 CRPC, through which the dispute of possession can be determined by the Honorable Court, and this is the first remedy which we can invoke in the criminal court for the possession of immovable property. So far as the language of 145 CRPC is concerned, there are certain questions. Whenever a magistrate of first class is satisfied from a police report or other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof. This paragraph enunciates that the powers given under Section 145 CRPC lies with the magistrate first class. Secondly, he must be satisfied. There are two methods for satisfaction of the magistrate. Number one, the police report or any other information which he gets from any other source that there is a dispute to likely to cause the breach of peace, कि इस बात का एहतमाल है कि किसी जगह पर अमन आमा का अंदेशा है, और वो जो अमन आमा है या वहाँ पर जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो तीन चीज़ों के बारे में हो सकता है। वो लैंड हो सकती है, वो कि वाटर पानी के खाल के ऊपर झगड़ा हो सकता है, और तीसरी बात यह है बाउंड्रीज, यानी कोई चार दीवारी है जिसके अंदर कोई इमारत है जिसके मतलब कोई झगड़ा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके लिए शर्त ये है कि that property should be in the territorial limits of the magistrate first class. This is the foremost condition for applying Section 145 CRPC, that the disputed property must lie within the territorial jurisdiction of, यानी इलाकाई इख्तियार समात जो है, जितने इलाके पर उस मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं उसके अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जनाब उसकी पावर्स क्या हैं वो इस सबसेक्शन 1 में डिस्कस की गई हैं कि वो फौरी तौर पर एक ऑर्डर लिखेगा और उसमें अपने मुतमईन होने की ग्राउंड्स बयान करेगा, और वो पार्टीज को रिक्वायर करेगा, यानी कि वो उनको डायरेक्शन देगा कि जो पार्टीज इंडल्ज हैं उस डिस्प्यूट में कि वो उसकी अदालत को आज खुद या अपने वकील के जरिए अटेंड करें
और उस ऑर्डर में वो एक टाइम फिक्स करेगा कि इतने दिन के अंदर अंदर फलां तारीख को फलां वक्त आपने मेरी अदालत में पेश होना है। और जब आप पेश हों तो अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स दाखिल करें मेरी अदालत के अंदर। आपके जो दावाजात हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है कि इस बुनियाद पर मैं इस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो रहा हूं और इस बुनियाद पर मैं काबिज हूं इस प्रॉपर्टी पर, वो जो आपका दावा है, जो आपका मौकफ है, जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है, आप उसको लिख कर पेश करें और अपने क्लेम्स के बारे में, और ये भी बताएं कि एक्चुअली उस जगह पर किसका कब्जा है। तो ये जी मैजिस्ट्रेट का फर्स्ट ऑर्डर होगा, जिसमें वो पार्टीज को डायरेक्ट करेगा कि वो उसके सामने पेश हों बजाते खुद या अपने वकील के जरिए, और अपने रिस्पेक्टिव क्लेम्स, जिस क्लेम की बाबत वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा ये मौकफ है, और ये भी बताएं कि उस डिस्प्यूटेड जगह पर कब्जा किसका है। सबसेक्शन 2 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो वर्ड सबसेक्शन 1 में यूज किए गए हैं, लैंड और वाटर, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो याद रखिए, ये जो लैंड और वाटर के वर्ड्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें जी बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी आप इसमें इंक्लूड करेंगे जो कोई इमारतें हैं, मार्केट्स हैं, फिशरीज हैं, जो कोई फिशिंग के जो फार्म वगैरह बनाए जाते हैं, क्रॉप्स फसलें हैं, और दीगर प्रोड्यूस ऑफ लैंड इसमें शामिल हैं, और इसी बाबत किसी जगह का रेंट और प्रॉफिट भी लैंड और वाटर में इंक्लूड होगा। जहां तक सबसेक्शन 3 का ताल्लुक है, तो इसमें वो तरीक़ेकार बयान किया गया है कि वो जो ऑर्डर जज साहब ने ऊपर लिखा है कि आप फलां तारीख को फलां वक़्त मेरी अदालत में खुद या बजरिया अदालत पेश हों, बजरिया वकील पेश हों, और अपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो दाखिल करें और कब्जे के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करें। ये जो ऑर्डर होगा, अब इसकी सर्विस करवाई जाएगी सबसेक्शन 3 के तहत, इसको सर्व किया जाएगा मुख्तलिफ लोगों के ऊपर। तो उसका तरीक़ेकार ये बयान किया गया कि जी ऑर्डर उसी तरह सर्व किया जाएगा जिस तरह से सम्मन्स की सर्विस की जाती है, और ये उन अशखास पर उसकी सर्विस की जाएगी जिसके मतलब मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन देंगे, और उस ऑर्डर की एक कम से कम एक कॉपी जो है वो जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, जो जाए मतदाविया है, उसके ऊपर या उसके नज़दीक किसी नुमाया जगह पर उस ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो चिस्पा कर दी जाएगी, उसको अफिक्स कर दिया जाएगा कि फलां फलां शख्स को इस ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्ट किया गया है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो। अब जनाब मैजिस्ट्रेट की पावर में उस पोजेशन के बारे में इंक्वायरी करना सबसेक्शन 4 के तहत सबसे अहम पावर है, और इसमें बाकायदा तौर पर मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायर करेंगे उस पोजेशन के बारे में कि ये किसका कब्जा है। इसमें जैसा जो मैजिस्ट्रेट हैं वो बगैर केस के मेरिट के देखे हुए या पार्टीज के क्लेम्स के देखे हुए, जो उनकी स्टेटमेंट पुट की गई हैं, जो उनके बयानात दाखिल किए गए हैं, उनका मुतालिया करेंगे, और उसके बाद पार्टीज को समाअत करेंगे, और उसके बारे में जितनी एविडेंस वो चाहें वो रिसीव करेंगे, और अगर उस मैटर को हल करने के लिए अगर वो मजीद शहादत भी लेनी चाहें तो वो उसको ले सकते हैं, और अगर मुमकिन हो डिसाइड इस बात का फैसला करेंगे whether any and which of the parties was at the date of order before mentioned in such possession of the land, तो वो इंक्वायरी के बाद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि जिस तारीख को मैंने अपना पहला ऑर्डर जारी किया कि आप अपने रिस्पेक्टिव क्लेम्स दाखिल करें और पोजेशन के बारे में आगाह करें कि इसका कब्जा है, तो वो उस बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तारीख को कौन सी पार्टी जो थी उस अपने ऑर्डर के जरिए इंक्वायरी करने के बाद
कि वो उस ऑर्डर के दिन जिस दिन उन्होंने पहला ऑर्डर जारी किया था उस तारीख को किस पार्टी का कब्जा था और वो प्रॉपर्टी किसके पास मौजूद थी। और इसमें एक प्रोवाइजो बयान की गई है जिसमें यह बयान किया गया कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब को ये पता चलता है कि कोई पार्टी 2 माह पहले काबज थी, उनके इनिशियल ऑर्डर से जज साहब ने जो सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर जारी किया उससे 2 माह कबल कोई पार्टी उस जाए मुतदाविया पर काबज थी, प्लेस ऑफ डिस्प्यूट पर काबज थी और उसको रॉन्गफुली और फोर्सिबली वहां से डिस्पोजेस कर दिया गया यानी निकाल दिया गया, तो जज साहब यही समझेंगे कि जिस पार्टी को इलीगली और अनलॉफुली वहां से फोर्सिबली डिस्पोजेस किया गया, जज साहब ये बात परज्यूम करेंगे कि जिस वक्त उन्होंने वो ऑर्डर जारी किया तो उससे पहले अगर किसी को 2 माह पहले निकाल दिया गया है तो जज साहब इस बात को परज्यूम करेंगे कि आज यानी जिस दिन उन्होंने ऑर्डर जारी किया उस दिन उसी पार्टी का कब्जा था जिसको वहां से 2 माह पहले डिस्पोज किया गया था। इसके बाद सबसेक्शन 5 में यह बात बयान की गई है कि इस सेक्शन 145 में दी हुई कोई भी चीज किसी पार्टी को प्रिक्लूड नहीं करती, रोकती नहीं है कि वो अगर कोई शख्स कि वो किसी ऐसे शख्स को बिल्कुल नहीं रोकती कि अगर वो कोर्ट में आके ये बयान दे देता है कि नो सच डिस्प्यूट एज अफोरसेड एग्जिस्ट्स और एग्जिस्टेड, कहते हैं जी कि इस तरह का कोई हमारे दरमियान झगड़ा हुआ ही नहीं, झगड़ा मौजूद नहीं है और ना ही कभी हुआ है। और ऐसे मैजिस्ट्रेट में फिर वो अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देंगे जो उन्होंने सबसेक्शन 4 के तहत इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर जारी किया था, उसको वो कैंसिल कर देंगे और तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको स्टे कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कैंसलेशन के ताबे द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल, तो जो 1 के तहत उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप मेरे पास अपने रिटन स्टेटमेंट दायर करें और एक्चुअल पोजेशन के बारे में बताएं कि जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है या सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उस पर असल कब्जा किसका है, तो वो जो इनिशियल ऑर्डर था वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जज साहब ने जो इंक्वायरी करने के बाद सबसेक्शन 4 के बाद जो ऑर्डर जारी किया उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। सबसेक्शन 6 में यह बात बयान की गई है कि पावर है मैजिस्ट्रेट की कि पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अनटिल लीगली एविक्टेड, जिस पार्टी का कब्जा है वो उसको रिटेन करेगी, वो उसको जारी रखेगी जब तक उसको वहां से लीगली कानूनी तौर पर बेदखल नहीं कर दिया जाता। इफ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड under the first proviso of subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to the possession thereof until evicted therefrom in due course of law। मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं, फैसला करते हैं कि एक पार्टी का कब्जा था या होना चाहिए। जो फर्स्ट प्रोवाइजो और सबसेक्शन 4 के तहत अगर उसको वहां से इलीगली कर दिया गया है, डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो उस पार्टी को डिक्लेयर करेंगे कि वो कब्जे की हकदार है जब तक उसको वहां से ड्यू कोर्स ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए बेदखल न किया जाए और वो तमाम डिस्टर्बेंस को फॉरबिड कर देगी, मना कर देगी उसके कब्जे में अनटिल सच एविक्शन, जब तक उसको लीगली तौर पर वहां से एविक्ट न किया जाए, बेदखल न किया जाए। एंड व्हेन ही प्रोसीड्स अंडर द फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 4 मे रिस्टोर टू पोजेशन द पार्टी फोर्सबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस। और अगर उसका पहले से कब्जा जारी नहीं है
और मैजिस्ट्रेट देखते हैं कि उसका कब्जा होना चाहिए, तो फिर जनाब वो उसके कब्जे को रिस्टोर करवा सकते हैं, बहाल करवा सकते हैं उस पार्टी को जिसको वहां से फोर्सिबली और रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया था। दीज आर द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 CRPC। दूसरा इसमें पॉइंट 7वें नंबर पर जो सबसेक्शन है, अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, दौरान समाते प्रोसीडिंग कोई पार्टी फौत हो जाती है, कोई फरीक फौत हो जाता है, तो मैजिस्ट्रेट जी उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज्ड पार्टी के, मरने वाली पार्टी के, उनको उसमें पार्टी बना सकता है और फिर वो कंटिन्यू रखेगा उस इंक्वायरी को। एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज, और अगर कोई ऐसा सवाल पैदा होता है कि उस मरने वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है, उसके कानूनी वरसा कौन कौन है, तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 7 इस बात की मैजिस्ट्रेट को अख्तियारात देता है कि ऑल पर्सन क्लेमिंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी शैल बी मेड पार्टी। तो तमाम लोग जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम मरने वाले के वरसा हैं, मैजिस्ट्रेट जो हैं तमाम अशखास को पार्टी बनाने के पाबंद हैं, जब तक फिर बाद में देखा जाएगा कि वेदर दे आर लीगली इंटाइटल्ड टू बिकम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड और नॉट। लेकिन सरे दस्त जो लोग भी क्लेम करेंगे मैजिस्ट्रेट के लिए जरूर वो उनको पार्टी बनाए। सबसेक्शन 8 में यह बात बयान की जाती है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कार्रवाई के दौरान मैजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि कोई क्रॉप फसल ऐसी है या प्रोड्यूस ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ऐसा है, द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम, या उसके सामने जो डिस्प्यूट पेंडिंग है इस सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, वो तेज रफ्तारी से और कुदरती तौर पर वो तबाह होने वाली है या कुदरती आफात के जरिए उसको तलफ होने वाली है। ही में मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर कस्टडी के लिए या उसको सेल करने के लिए एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और जब वो इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है तो वो ऐसा ऑर्डर जो है वो इस प्रॉपर्टी के बारे में वो जारी कर सकते हैं, या फिर उसकी सेल प्रोसीड्स के बारे में जो वो ऑर्डर जारी करना चाहें वो जारी कर सकते हैं, जैसा वो कि वो मुनासिब समझे। सबसेक्शन 9 में जो बात बयान की गई है तो वो उस प्रोसीडिंग के किसी भी मरहले पर अगर किसी भी पार्टी की तरफ से एक एप्लीकेशन आ जाती है जी कि हम फलां गवाह को इसमें बुलाना चाहते हैं, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो चाहें तो मे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही कैन इशू समन्स टू एनी विटनेस, कि वो किसी भी गवाह के समन जारी कर सकते हैं और उसको हदायत जारी कर सकते हैं कि वो बजाते खुद उनकी कोर्ट में पेश हो, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसके कब्जे में है, या कोई दीगर चीज़ है, थिंग है उसके कब्जे में, तो वो अदालत में पेश करे। 10 सब सेक्शन में ये बात बयान की गई है कि जो 145 CRPC के मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं, वो मैजिस्ट्रेट की जो अंडर सेक्शन 107 CRPC इख्तियारात हैं, वो किसी भी तरह से उसके 107 के इख्तियारात को डेरोगेट यानी उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं करता। और 145 इज इंटायरली अ सेपरेट प्रोसीडिंग with respect to possession of immoral property। तो इसका 107 या 151 CRP से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं। और सेक्शन 145 के जो इख्तियारात हैं वो सेक्शन 107 या सेक्शन 151 CRPC के इख्तियारात में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते।
इसमें जी 1981 PCRLJ पेज 294 में ये बात बयान की गई है कि जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 145 CRPC वो सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और मैजिस्ट्रेट जो है उसको इन्हीं प्रोविजंस के अंदर अपने आप को कन्फाइन रख कर 145 CRPC की कार्रवाई करनी चाहिए। जहां मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और उससे अमन आमा का खतरा है, तो वो प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी कर सकता है, और उसके बाद जब वो प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी करेगा तो उसके बाद वो इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन 4 जो है उसको कंडक्ट कर सकता है। जहां तक प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है अंडर सेक्शन 145 CRPC, तो याद रखिए कि ये इनका मतलब ये है कि ब्रीच ऑफ पीस को फौरी तौर पर प्रिवेंट किया जाए, चूँकि नक्शे आमा का ख़तरा है, ब्रीच है, उसके नक्शे आमा को में दखल अंदाजी का ख़तरा है, उसके टूटने का ख़तरा है अमन व अमान के, तो उसको रोकने के लिए सेक्शन 145 CRPC जो है वो इन्वोक की जाती है। और इसमें एक्चुअली दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं किसी भी खतरा को टालने के लिए, फौरी तौर पर स्पीडी रेमेडी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 145 CRPC जो है जी, ये प्रिवेंटिव ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट की लास्ट ब्रांच है, यानी इससे पहले 107 हमने डिस्कस किया, तो जिसमें नक्शे आमा का ख़तरा है तो पार्टीज डेगर ड्रान है, तो वो पुलिस ऑफिसर का अख्तियार है कि वो उनको अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकता है। लेकिन सेक्शन 145 जो है इसमें पोजेशन के बारे में डिस्प्यूट राइज होता है, या फिर किसी लैंड को जो सेक्शन 147 में बयान किया गया है, या वाटर को, या फिर इसकी बाउंड्रीज को यूज करने का जो हक है उसके बारे में जो डिस्प्यूट है वो राइज होता है। इसके बाद है जी कि ये जो डिस्प्यूट है जी, इसका कोई पब्लिक या कम्युनिटी एट लार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि डिस्प्यूट ऐसा होना चाहिए कि जिसके जो वो फ्रॉड होना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो डेंजरस होने चाहिए। इसलिए ऐसे डिस्प्यूट्स जो पब्लिक एट लार्ज के बारे में हैं या पब्लिक को वैसे अफेक्ट नहीं कर रहे, उनमें हम 145 CRPC इन्वोक नहीं कर सकते। इसकी इसी तरह से ये जो मैटर अगर सब जुडिस है कि एक प्रॉपर्टी के बारे में कोई ऑलरेडी कोई मुकदमाबाजी चल रही है, कोई सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, जिसको हम मैटर सब जुडिस कहते हैं कि बिफोर द कोर्ट वो पेंडिंग है, तो उसमें जी 145 की जो कार्रवाई है किसी भी शॉप के बारे में या किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में जो अंडर 145 CRPC है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें फिर सर्कमस्टांसेस के चेंज्ड होने का अंदेशा है। तो फिर इन हालात में जबकि कोई कार्रवाई सब जुडिस है, कोई दावा सब जुडिस है, सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, तो उसमें जी 145 की जो कार्रवाई है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हाई कोर्ट ने इसमें करार दिया है, उसने ये करार दिया है जी कि इसमें मैजिस्ट्रेट जो है वो अनएबल टू डिटरमिन द इशू इन अकॉर्डिंग विद द लॉ है, यानी वो लॉ के मुताबिक इश्यूज को डिटरमिन करने के काबिल नहीं था। जहां तक इस सेक्शन के ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है, या इसका जी मियर ऑब्जेक्ट ये है कि प्रिवेंट ए ब्रीच ऑफ पीस
by maintaining one or other of the parties in the possession which the court finds they had immediately before the dispute। हम यहाँ पर एक ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है बड़ा मोहतात होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पर फौरी तौर पर नक्शे आमा का खतरा मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से जो एक्शन है ये मुकम्मल तौर पर एक जुडिशियल एक्शन नहीं है बल्कि ये कुज़ाई एग्जेक्टिव एक्शन है। और कुज़ाई एग्जेक्टिव ये है कि ये इंतज़ामी किस्म का एक एक्शन है या ऑर्डर है जो कि मैजिस्ट्रेट ले सकता है जिसके अपने मकासद हैं और जस्टिफिकेशन इसकी ये होनी चाहिए जी कि प्रिवेंटेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक पीस जो है वो इसमें लाजमी है। जहां तक केसला का तल्लुक है तो नसीम अख्तर वर्सेस स्टेट, इसमें इसकी पर्पस बयान की गई है अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी इज टू एनेबल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू मेंटेन स्टेटस को till the parties have their matter decided by the civil court of competent jurisdiction। 1996 PCRLJ पेज 560 में इस सेक्शन की पर्पस ये बयान की गई है जी कि ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का अख्तियार है कि वो उस वक्त तक स्टेटस को बरकरार रखें उस पोजेशन के बारे में जब तक कि सिविल कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन से दावा दायर करने के बाद उसका फैसला नहीं हो जाता। जहां तक अजम्पशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन का कोई मैजिस्ट्रेट जो है वो कब इसकी ज्यूरिस्डिक्शन को अज्यूम करेगा तो उसके लिए 5 पॉइंट्स जरूरी है जी। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट लाजमी है, ऐसा डिस्प्यूट जो है वो लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है कि वो जो डिस्प्यूट है वो किसी लैंड, वाटर या बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड के बारे में होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि डिस्पोजेस किया गया हो, डिस्पोजेशन इफ अलेज्ड इज विदिन 2 months प्रायर टू द इनिशियल ऑर्डर पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। अगर किसी को डिस्पोजेस किया गया है तो मैजिस्ट्रेट के इनिशियल ऑर्डर से 2 माह पहले का ये वाकया होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये है कि डिस्प्यूट मस्ट बी विदिन द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ये मैजिस्ट्रेट की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में होना लाजमी है। अब अगला सवाल ये आता है जी कि कब मैजिस्ट्रेट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसको इन्वोक कर सकता है। तो याद रखिए कि मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी can invoke only on the ground of likelihood of breach of peace, otherwise he cannot assume jurisdiction। मैजिस्ट्रेट का जो ऑब्जेक्ट है अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी वो फौरी तौर पर प्रिजर्व पीस को यकीनी बनाना है और उस कंट्रोवर्सी में उसने दाखिल नहीं होना कि टाइटल ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी किसका है और इट्स ओनली ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और इसका इन्हिसार फाइनल एडजुडिकेशन थ्रू कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सिविल ज्यूरिस्डिक्शन के जरिए है। दिस इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी कहीं भी कोई डिस्प्यूट अराइज होने का अंदेशा है तो फौरी तौर पर जो रेमेडी अवेलेबल है किसी के पास कि उसको फौरी तौर पर कैसे नक्शे अमन को रोका जाए, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जहां तक इसकी मजीद इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है तो सेक्शन 146 सीआरपीसी जो है वो भी इसके मुतलका है जी। और उसमें जो बयान किया गया है उसके मुताबिक ये है कि आप पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जी, इफ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट नन ऑफ द पार्टीज वाज देन इन सच पोजेशन or is unable to satisfy himself as to which of them was dead, then in such possession of the subject of dispute he may attach it until a competent court has determined the rights of the parties or the person entitled to possession thereof। देखिए मैजिस्ट्रेट साहब ये फैसला करते हैं कि दोनों पार्टीज में किसी का कब्जा नहीं था
या फिर वो इस काबिल नहीं है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर सके कि किस पार्टी का कब्जा था, तो उनके पास ये इख्तियार है जी, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट के फैसले तक उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। उनका ये इख्तियार है जी कि वो, या फिर वो ये कर सकते हैं कि उसका पोजेशन जो है उसको अटैच कर दें, लेकिन शर्त ये है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया था और किसी भी टाइम वो उस अटैचमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि अब इससे आगे देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, तो वो फौरी तौर पर उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं जी कि जब मैजिस्ट्रेट किसी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उस प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर नहीं है, तो उस डिस्प्यूट के ताबे तो वो सिविल कोर्ट की तरफ से की तर्ज पर एक रिसीवर जो है अपॉइंट कर सकते हैं, जो उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगा जी, और उसको तमाम इख्तियार हासिल होंगे जो उसको सीपीसी के तहत हासिल होते हैं। और अगर शर्त यह है कि अगर कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया है उस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट पर, लेकिन उसके बाद सिविल कोर्ट कोई नया रिसीवर अपॉइंट कर देती है, तो सिविल कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए जाने वाला जो रिसीवर है वो अपर हैंड रखेगा एज कंपेयर टू द क्रिमिनल कोर्ट, और क्रिमिनल कोर्ट वाला जो रिसीवर होगा वो फौरी तौर पर उसका कब्जा सीपीसी की जो तहत जो सिविल कोर्ट की तरफ से अपॉइंट करदा रिसीवर होगा उसके हवाले करने का पाबंद होगा। तो जनाब अली वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा और उसकी तमाम ड्यूटीज़ जो है वो सीपीसी में बयान की गई हैं, वो उसके मुताबिक उसका अपनी ड्यूटीज़ को अदा करने का पाबंद होगा। So this was a very interesting topic today regarding the possession of more property, and it was a speedy remedy under section 145 CRPC। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवालात हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।